On behalf of Nusantara Dharma Book Festival, I would like to welcome His Holiness the 14th Dalai Lama. Your Holiness, Tashi Delek, thank you so much for joining us. Hello and welcome everyone. I will be moderating this event. So allow me to introduce myself a little bit. My name is Dewi Lestari. You can call me Dee. I'm a writer, a singer, and a songwriter. Some of my works were inspired by the Buddhist teachings and values. So being here with you is such a deep, deep honor. So 1,000 students from various places and schools in Indonesia are joining us at this very moment, and more people are also watching from the live stream. This program is a part of the Nusantara Dharma Book Festival, or NDBF, an annual festival organized by Lamrimnesia to improve public interest in reading, especially for the younger generation in Indonesia. This is the NDBF's third year with a theme that focuses on supporting mental resilience during this pandemic. Our event today is called Grand Buddha Goes to School. This program introduces the universal value of loving kindness to Indonesian children through roadshows and the distribution of Jataka Mala books since 2016. Now, this pandemic should not hinder this effort. So therefore, Grand Buddha Goes to School is now held online at NDBF's 3.0, organized by Lamrimnesia and Kadam Choiling Indonesia. Kadam Choiling Indonesia is a community that studies and practices Mahayana Buddhism in Nusantara under the guidance of our beloved Guru, Dakpo Rinpoche. So on today's Dharma Talk, we are going to cover Jataka Mala, or the stories of Buddha Gautama's various lives depicted in the Great Borobudur Temple. So we would like to receive Your Holiness insights regarding this topic. And before we do that, it is a noble tradition to offer a mandala. तो इस आज की धर्म वार्ता में हम जातक माला या गौतम बुद्ध के विभिन्न जीवन की कहानियों को सम्मिलित करने जा रहे हैं, जिन्हें ग्रेट बोरोबुदुर मंदिर में दर्शाया गया है। इसलिए हम इन विषय के बारे में परम पावन जी की अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहेंगे। शिक्षाओं के अनुरोध से हम शिक्षा को एक मंडल ब्रह्मांड के प्रतीक की पेशकश करना एक महान परंपरा है। इसलिए मैं इंडोनेशिया अभिनेता मॉर्गन ओयल को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो सक्रिय रूप से युवाओं को दयालुता फैलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमारे जप गुरु के रूप में और परम पावन के लिए लघु मंडल प्रसाद का नेतृत्व कर रहे हैं। 조시 메토당 이담 구루 рат나만달라 감니랴타야미. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अर्पित आपने किया। Good morning. आप सभी को सुप्रभात। Now, today, some discussion. तो आज कुछ चर्चा है इंडोनेशियन विद्यार्थियों के साथ में, युवाओं के साथ आज चर्चा है। Those people who और ख़ास करके ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखा रहे हैं या रुचि रखते हैं, उनके लिए आज खासकर उनके लिए आज की वार्ता है, आज का उपदेश है। I am a Buddhist practitioner. तो मैं एक बौद्ध साधक हूँ, बौद्ध धर्म का अभ्यास करता हूँ। One of my commitment is promotion. तो मेरी प्रतिबद्धताओं में से एक धर्मों के बीच सद्भावना को बढ़ाना है। तो विभिन्न धार्मिक परंपराएं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, तो जितने भी विभिन्न धर्म परंपराएं, जैसे कि यहूदी धर्म, तो ये अलग अलग धर्म की परंपराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इन सभी का जो संदेश है वो एक होता है, सभी प्रेम और करुणा की बात करते हैं। In order to
also strengthening belief और अपने श्रद्धा को, विश्वास को परहित के लिए अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग दर्शनों की आवश्यकता होती है। अलग अलग तो कुछ कहते हैं कि ईश्वर है, कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं, कुछ ईश्वर को मानते हैं। लेकिन तो ये भी एक प्रकार के उपाय हैं। तो हमारे जो मुख्य उद्देश्य, हम लोगों का उद्देश्य जो है होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम करुणामयी व्यक्ति बने, सहनशील युक्त व्यक्ति बने। तो जितनी भी बड़ी बड़ी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका जो मूल मंत्र है, मूल संदेश है, वो यही होता है कि सबका भला हो। उनके लिए हालांकि वो अपने अपने तरीके अलग अलग अपनाते हैं। तो आप मुस्लिम धर्म को देखिए, इस्लाम धर्म को देखें तो आप लोग जो अल्लाह में श्रद्धा करते हैं मुस्लिम, तो अल्लाह क्या है? तो अल्लाह का वो कहते हैं कि अनंत जिसमें प्रेम हो उसी अल्लाह कहते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म के अनुसार जीसस क्राइस्ट अर्थात इस जो ईसा मसीह को, वो उनका अर्थ क्या है कि वो प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हैं। चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसा मसीह हो, तो इनको, इन धर्मों के मानने वाले लोग इनको सृष्टिकर्ता मानते हैं, रचयिता मानते हैं। तो मुख्य कारण यही है, अगर आप इन लोगों को एक कर्ता के रूप में माने, पूरे इस पूरे ब्रह्मांड को के कर्ता के रूप में अगर आप मानते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता होगा, आपकी श्रद्धा को बढ़ाने में उससे लाभ मिलता होगा। चाहे फिर उसके बाद बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, उसमें कर्ता की कोई बात नहीं कही गई है, कर्ता को अस्वीकार करते हैं और स्वनिर्मित होती हैं चीज़ें, स्वनिर्मित होती ऐसी मान्यता है। लेकिन हम सभी का जो उद्देश्य है तो वो सच्ची मनुष्यता के प्रति करुणा, मैत्री होनी चाहिए। तो मेरी जो प्रतिबद्धता है, जो मेरी प्रतिबद्धता, उसमें से धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ाना। तो इसके लिए एक दूसरा एक कारण यह भी है कि मैं भारत में रह रहा हूँ, और भारत देश को अगर आप देखें तो इसमें जो दुनिया की जितने भी जो धर्म की परंपराएं हैं वो सभी के सभी यहाँ पर विराजमान हैं। तो पिछले कई हजारों वर्षों से धार्मिक सद्भाव की जो विचारधारा भारत में स्थापित रही है। तो भारत भी एक जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में सम्मिलित है, और भारत में सर्वधर्म समभाव भी है, और संभव भी है कि हम लोग जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर हम स्थापित कर सकते हैं। तो मेरी एक प्रतिबद्धता यही है कि धर्मों के बीच सद्भावना को बढ़ाया जा सके। तो आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आज मैं कुछ मुस्लिम भाई बहनों से भी यहाँ मिल रहा हूँ जो कि इंडोनेशिया से हैं। आप लोग जो इंडोनेशिया के कुछ मुस्लिम भाई बहन भी हैं, जो कि आप भी एक बड़ी आबादी वाले हैं, मुस्लिम देश के लोग हैं। चाहे आप धर्म को माने या न माने, ये आपकी व्यक्तिगत आज़ादी है, आपके व्यक्तिगत मत पर ये निर्भर करती है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखें तो हम सभी लोग मनुष्य हैं। हम लोग बचपन से ही अपने माँ की करुणा के वजह से, माँ के प्रेम की वजह से हम जीवित रह पाए हैं। शायद अगर माँ का प्यार न मिला होता तो हम लोग शायद जीवित न रह पाते। ये मनुष्यों की बात नहीं है, अन्य जानवरों में भी देखें, अन्य जंतुओं में भी देखें, तो वो भी अपने माँ बाप से प्रेम और करुणा के वजह से अपने जीवन को चलाने में समर्थ हुए हैं। तो आज के समय में आप देखें कि बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत पिछले शताब्दी में बहुत सारी समस्याएं भी हुई। तो ये कमी जो हमारी भाई बहन की मान्यता,
So we बंधुत्व की मान्यता करुणा में कमी होने की वजह से आई है। compassionate, but then eventually when अगर आप जितना ज़्यादा uh, करुणामयी a होंगे normal person तो चाहे भले ही आप सामान्य पुरुष क्यों ना हों, लेकिन फिर भी अगर आप ये जो धर्मों की गंभीरता वाली जो बातें हैं, करुणा मैत्री जो हैं, इनको अगर छोड़ दोगे, किसके संबंध में? आप कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में, क्रोध और इसकी वजह से अगर मूल बातों को छोड़ दोगे, तो आप देख सकते हैं कि पिछले शताब्दियों में किस प्रकार की हिंसा हुई, हत्याएं हुई, झगड़े हुए। human being seems to say becoming more mature. तो अब लोग ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एक प्रकार से Completely fed up काफ़ी about violence. एक प्रकार से अच्छे हुए हैं लोग। जो युद्ध हैं, झगड़े हैं, उनसे एक प्रकार से वो दुखी हो चुके हैं, We have उससे special response उकता गए हैं, to promote तो इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। loving kindness तो सभी चाहते हैं कि जो हमारे मनुष्यों की प्रेम और करुणा का जो संदेश है वो बढ़ सके। इसके अलावा जो जितने भी मनुष्य लोग हैं उन सभी में समानता हो, एकता हो, together. और इसके साथ साथ हम अपने प्रेम और करुणा के माध्यम से साथ साथ रह सकते हैं। जो विश्व की अगर शांति की बात हम करें, 7 billion जो कि 7 अरब के आसपास जो लोग हैं, उन सभी के लिए ये आवश्यक है, सभी के सभी लोग एक साथ रह सकें, भाई बहन की तरह रह सकें। religious people, तो हम लोग जो धार्मिक लोग हैं Muslim और ख़ास करके जो हमारे मुस्लिम समुदाय है, community, opportunity तो उनके पास भी एक विशेष अवसर है make कि आप लोग peaceful world, आप विश्व को शांतिमय बना सकें। religious harmony, आप धर्म के आधार पर विश्व में एक शांति फैला सकते हैं। meeting with तो आप लोगों से मिलकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है people from Muslim country. कि ऐसे देश के लोग जहाँ इस्लाम धर्म है, ज़्यादातर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। One of the most populated तो Muslim country. जो इंडोनेशिया है वो मुस्लिम राष्ट्रों में से ऐसा राष्ट्र है जहाँ बहुत ज़्यादा मुसलमानों की, इस्लाम को मानने वाले You लोगों have some की, interest about मानने वाले लोग रहते हैं। Buddha's story. तो आप लोग भगवान बुद्ध के कुछ जो जातक कथाएं उनसे प्रभावित हैं, ऐसा आप लोगों को सुनाते हैं। Buddha's story about 34 Kirusoshi. One great Indian master. Firstly, he not sort of follower of Buddha Dharma. तो ये कहानी है 34वें जातक की बात कह रहे हैं कि एक व्यक्ति थे जो कि बहुत बड़े व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, वो धर्म में श्रद्धा नहीं करते थे। तो वो नालंदा में जो बुद्धिस्ट स्कॉलर के साथ साथ वार्ता करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे नालंदा के जो विद्वान थे उनको डर था। Writer of this book, माफ़ करना, ये great scholar. तो ये जातक जो मैं शायद गलत कहा, बुद्ध के समय की बात नहीं है। तो इस जो नालंदा के समय की बात है, तो उस समय जो नालंदा था बहुत बड़ा स्कूल हुआ करता था, और वहाँ के जो विद्वान लोग थे वो भी बहुत बड़े या विख्यात विद्वान थे। और तो उनके अंदर पूर्ण रूप से एक प्रकार से आत्मविश्वास था। वो जैसे पर एक नागार्जुन नाम के व्यक्ति साउथ इंडिया से थे, तो उन्होंने अपने मित्र को नालंदा में भेजा, शिष्य को भेजा। तो ये कहानी है कि नालंदा के समय में एक कोई अबौद्धों के जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक प्रकार से चुनौती दी कि वो वहाँ पर चर्चा करने आएंगे। तो उसी के संबंध में ये बात हो रही है कि जो किताब है उसके जो रचनाकार हैं, तो उन्होंने भी उसका जिक्र किया है। जो रचयिता है उन्होंने बुद्ध की एक कहानी के बारे में जिक्र किया है। उसको वो कहानी काफ़ी अच्छी है। तो कहानी होती है। One story of their own guru. और आपको जो ऐसी
कहानी जो अपने गुरु के बारे में हो, little exaggeration. तो हो सकता है अपने गुरु के बारे में अगर कोई बात कहता है तो उसमें थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर भी लिख दिया जाता है। ठीक है, बुद्ध के शिष्य ने लिखी या गुरु की लिखी, Firstly, तो मुख्य बात तो जो उनकी जो शिक्षाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण बात होती है। our concept is ahimsa. तो भारत में पिछले कई हज़ारों वर्ष प्राचीन जो अहिंसा और करुणा, इसका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। Main motivation तो जो नॉन वायलेंस और अहिंसा का मुख्य उद्देश्य हमारी करुणा होनी चाहिए। So all Indian tradition, including Muslim, you see, main message is non-violence. तो मुख्य जो विचारधारा है वो हमारी अहिंसा परहित होनी चाहिए। ये भगवान बुद्ध के दर्शन में कहा जाता है। Whether we accept religion तो or चाहे हम धर्म को माने या न माने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमें करुणामयी व्यक्ति होना चाहिए, person, परहित के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। more warm-heartedness, जितना आप दयालु होंगे you see, उतना ही give peace, happiness yourself, तो उतने ही आप अपने आप को खुशी देंगे और उतने ही आप जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके have some kind of जो पड़ोसी हैं, उनको भी आपसे खुशी मिलेगी। atmosphere. और उसी के आधार पर जो हमारा पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, वो भी अच्छा बन जाता है। चाहे आप किसी धर्म को माने या न माने, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि हम बचपन से ही लोगों के करुणा की वजह से, प्रेम की वजह से अपने जीवन का निर्वाहन कर रहे हैं। तो उससे भी अच्छी बात है कि हमें एक दयालु व्यक्ति बने रहना चाहिए। Message. तो ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप अच्छा व्यक्ति बने, दयालु व्यक्ति बने। Now some questions. Thank you, Your Holiness, for तो your अब lovely sharing. कुछ प्रश्न उत्तर करें। तो मुझे लग रहा है कि प्रश्न उत्तर करने से ज़्यादा अच्छा है। Some of our selected students already prepared their questions. तो कुछ हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने प्रश्न तैयार किए हैं। Liviana Andi Wijaya, तो सबसे पहले लिबियाना अन्नी विजयला, Ananda Bogor Junior High School. तो आनंदा बोगोर जूनियर हाई स्कूल की छात्रा हैं। उनका प्रश्न है, My question is, in the Jakarta tells that तो मेरा प्रश्न है कि जातका कहानी में कहा जाता है कि बहुत सारे बोधिसत्व हुए हैं, उन्होंने अपने शरीर को भी न्यौछावर कर दिया। तो क्या हमें भी वैसा करना चाहिए, possible. और क्या हम उसी तरह से कार्य कर सकते हैं और अच्छा व्यक्तिवाद, Yes. तो क्या हम करें कि बोधिसत्वों की तरह हम भी अपने आप को न्यौछावर कर सकें। 전주선배 선생님이 되는 랑 류에 땅에 레스 마우 송샤스 더디 류에 땅다디 그소리 당고에 된다 그 되는 가리 나스 안주에 된데 제투에 요르레스 Correct. 류 땅에 류다 소 땅에 그 근데 게름 나가 된데 마우 송샤스 So really, also the matter of November year to Changju Sembe Simjin then Rangi Yu Luso Dan Lu Yu Mabu Song Yu. Now, according to the circumstances, in case if you sacrifice तो परिस्थितियों के आधार पर अगर आप sacrifice your own life, अपने जीवन को अगर किसी के लिए न्यौछावर करते हैं, दूसरों के हित के लिए अगर आप जो न्यौछावर अगर कर देते हैं जिससे कि बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा हो, it is worthwhile. तो निश्चित रूप से ये जो त्याग है, जो बलिदान है, वो देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे कि बहुत सारे लोगों को लाभ होता है, लोगों को जीवन मिल रहा है, हजारों लोगों का हित हो रहा है, हजारों जानवरों का हित हो रहा है। तो उसमें इस प्रकार के अगर आप कभी आपको ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो हमको लग रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, पहले भी बहुत सत्य लोगों ने किए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने करुणामयी चित्त को साथ रखना चाहिए
और जो भी लोग हैं उनके हित के लिए विचार करना चाहिए, और साथ साथ जो हमारी अपनी प्रज्ञा को साथ रख से परिस्थितियों को देख करके जो अगर हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को भी न्यौछावर करना पड़े तो हो सकता है कि जिससे कि बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है तो ठीक है। ऐसा नहीं है अंधविश्वास होकर के अपने जीवन को न्यौछावर कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। आपके अंदर प्रज्ञा के माध्यम से होना चाहिए। आप तृष्णा की वजह से, क्रोध की माध्यम से अगर आप अपने जीवन को बर्बाद करें तो मैं नहीं मानता हूँ कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दूसरों को सोच करके, दूसरों का हित सोच करके, दूसरों की भलाई को सोच करके अगर आपके जीवन को निछावर करना पड़ रहा है तो बहुत सारे लोगों को लाभ हो सकता है। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारों को लोगों को लाभ हो रहा है तब तो शायद उचित है। Okay. Question Next will be question. asked. Yes, the second one will be asked by Langi Jinga. तो लंग जिंगा के द्वारा दूसरा प्रश्न है। 17 वर्ष के स्कूल के छात्र हैं, Will be in Tibetan. तो इनका प्रश्न जो है तिब्बतन में होगा, तिब्बती भाषा में पूछेंगे। Tashi Delek. Nyin Riwani. Neam ki dupa dir. तो मेरा प्रश्न है, Mantra Rewa Lakpe. तो जो अभी कोरोना महामारी में की जो समस्या है, ऐसे लोगों की इस समय लोगों की एक प्रकार से उम्मीद टूटी है, लोग दुखी हैं, तो ऐसी अवस्था में हम लोगों की कैसे मदद कर सकें, क्या हम हेल्प कर सकते हैं? Unfortunately, one kasa kuru Coronavirus. Pandemic. ah No, oh the virus, one what to say the disease, name the pandemic. oh so it really America तो जो महामारी की बात है, कोरोना महामारी की अगर बात करें तो चाहे अमेरिका में हो, भारत में हो, also some European countries. तो यूरोपियन देश हों, एशियन देश हों, रशिया है, Now beside that तो इन सभी में है। तो लेकिन इनके अतिरिक्त और भी हमारी जो समस्या, वैश्विक ताप की जो समस्या है, changing वो weather भी condition. बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, हर बहुत जगह पर आग लग रही है। We really now we human being of this world really now facing some critical period. तो अभी विश्व जो है बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, Now mean समस्याओं से गुजर रहा है। we have some way तो इसी के साथ हालांकि समस्याएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी हमारे पास ऐसी व्यवस्था भी है कि इन चीज़ों का, इन समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं problem. और इन समस्याओं को हम कम भी कर सकते हैं So I और really कम करने की कोशिश भी करना चाहिए। admire many doctors. तो मैं जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं और चिकित्सा क्षेत्र में जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, उन सभी की मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं कि ऐसे लोग बीमार लोगों की मदद कर रहे हैं। Temporary, eventually, certainly disappear. तो मैं मानता हूं कि अभी जो बीमारी है ये अभी के लिए, लेकिन एक समय होगा कि इस बीमारी समाप्त होगी, इस बीमारी से हम मुक्ति पाएंगे। Discourage. और कोई भी चीज़ अगर होती है, किसी प्रकार की समस्या अगर होती है तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए If we remain और उम्मीद रख कर के सोचना चाहिए कि ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक दिन अच्छा आएगा। अगर आप उम्मीद तोड़ देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, आप एक प्रकार से लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुझे ही देख लीजिए I never give कि up. मुझे इतनी समस्याएं का सामना करना पड़ा। मैंने अपने पूरे जीवन काल में समस्याओं का सामना किया, कभी उम्मीद नहीं छूटी, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। समस्याएं हुई तो आप उम्मीद तो कर सकते हैं, शांति रख सकते हैं,
आप उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद साथ साथ अपने Thank you, मन Your को Holiness. शांत रख सकते हैं। Now, our third question is तो coming तीसरा from प्रश्न Indibara Chesa तो Wimala Putri. She is इंदिबारा 16 years old from Ananda Bogor Senior High आनंदा School. बोगोर सीनियर स्कूल की छात्रा है, वो आपसे अब प्रश्न पूछेंगे। Good morning, Your Holiness. तो इनका प्रश्न है कि जो बोराबुदुर टेम्पल है वो विश्व में सबसे बड़ा है, Biggest temple in the world, and और इसलिए जो इंडोनेशिया में इससे हमें लोगों को एक प्रकार से आशीर्वाद भी प्राप्त होती है। तो यही मैं पूछना चाहती हूँ कि इंडोनेशिया के जो युवा बौद्ध हैं वो बोराबुदुर मंदिर का रख रखाव कैसे कर सकते हैं, और परम पावन जी इस मंदिर में कब आएंगे, यहाँ आप कब भ्रमण करेंगे? Thank you. Okay. Borobudur, I have been. तो बोराबुदुर मैं गया हूँ, एक बार मैं वहाँ पर गया। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा ये मंदिर है, विहार है, बुद्ध विहार I है। believe the temple important, but really important is inner temple. तो मैं मानता हूँ कि जो बुद्ध विहार महत्वपूर्ण है, तो जो बुद्ध विहार है या मंदिर है वो हमारा अंदर होना चाहिए, दिल के अंदर होना चाहिए। वो क्या है कि करुणा, मैत्री, Karuna. वो हमारे अंदर होनी चाहिए। And then इसके साथ साथ use our brain और आप अपनी प्रज्ञा का उपयोग करें, utilize इसका उपयोग करते हुए, or say aim और हमारा जो उद्देश्य है and how to कि किस achieve प्रकार से हम not only through विश्व को सुखमत बना सकें। but through तो विश्व को सुखमत बनाने के लिए हम केवल प्रार्थनाओं से नहीं कि उपायों की आवश्यकता है। तो उपायों के लिए जो हमारी मनुष्य की प्रज्ञा है उसका भरपूर उपयोग करें। really wonderful तो बोराबुदुर जो वास्तव में बहुत ही अच्छा बुद्ध विहार है, इसमें कोई दो राय नहीं। once now future I don't मैं know. एक बार तो ज़रूर वहाँ पर गया हूँ, लेकिन भविष्य में कब आऊँगा ये तो मैं अभी कह पाने में असमर्थ हूँ। If there is opportunity, लेकिन फिर भी अगर सौभाग्य मिलता है, अवसर मिलता है तो ज़रूर आना चाहूँगा। the real Borobudur within us. लेकिन जो मुख्य बोराबुदुर है वो हमारे दिल में होना चाहिए। बोराबुदुर का अर्थ है हमारी जो करुणा, मैत्री, प्रज्ञा के साथ जोड़ करके होनी चाहिए। यही वास्तविक बोराबुदुर है। सबसे बड़ा विहार या मंदिर तो यही है। Temple. अगर मान लीजिए कोई बुद्ध विहार हो, खाली हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वास्तव में जीवित विहार की अगर बात करें वो हमारे अंदर है, Very important. तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान देना चाहिए। That is so lovely. Thank you so much, Your Holiness. And so the fourth student, he looks familiar. Hello, my son. This is Kinan Abalokita Kirana. He is 17 years old from Cikal Serpong Senior High School. Greetings, Your Holiness. My question is, I struggle to find balance between being myself and being accepted तो by others. मैं स्वयं और दूसरों के बीच एक प्रकार से बैलेंस चाह रहा हूँ। तो कभी कभी मैं एक प्रकार से घबरा जाता हूँ और अपने आप को बहुत ही कमज़ोर पाता हूँ। जो मेरे पास लोग हैं वो जो नकारात्मक भी लोग होते हैं, तो ऐसे नकारात्मक लोगों से मैं कैसे डील कर सकूं, कैसे सामना कर सकूं। Keep तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने आप को, जो आपके जो नैतिकता है उसको रखें, करुणा को रखें। what the people say. तो लोग क्या कहते हैं उस पर आप ध्यान न दें। You see, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, तो खास करके कि आधुनिक समय में, ऐसे में जब मीडिया है carry और जो हमारे मीडिया उसके द्वारा बहुत ज़्यादा सूचनाएं दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। I'm according my own experience. तो मैं अपने जीवन का अगर उदाहरण दूं कि Suffer मैं our own country. तो मैं अपने देश में भी मुझे दुखों का सामना करना पड़ा। उसके बाद भारत में शरणार्थी के रूप में आया, Then I carry my और फिर practice. तो भारत में आने के बाद भी जो हमारी बौद्ध परंपरा है, तिब्बती बौद्ध परंपरा जो रही है, उसका मैंने एक प्रकार उसको मैंने जारी रखा। तो भारत
तिब्बत में जो बौद्ध परंपरा का परिचय कराया गया आचार्य संत रचित के द्वारा कराया गया था, उसको हम अभी भी जारी रख रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी मूल भाषा है। तो 7वीं शताब्दी की बात है, 7वीं शताब्दी में तिब्बती लिपि बनी, तो उसका वहाँ के राजा के आदेश पर लिपि का निर्माण किया गया। तो उसका जो निर्माण है या जो लिपि है तिब्बत की, भारत की देवनागरी लिपि से उसकी तिब्बती लिपि की निर्माण किया गया। तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि 7वीं शताब्दी में जो चीन के राजा ने जो चीन की राजकुमारी से शादी की थी, तो चीन के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन जहाँ तक अक्षरों की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि राजा को तो शायद उनको ख़राब लगे, बोर हो रहे होंगे, तो उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज सीखने के बजाय, उनके लिपि को सीखने के बजाय उन्होंने निश्चय किया कि हमें अपनी लिपि को बनाना चाहिए, और देवनागरी ये लिपि से उन्होंने कॉपी करके तिब्बती लिपि का निर्माण कराया। We Tibetan generally we very courageous people. तो सामान्य तौर पर अगर देखें तो हम तिब्बती लोग जो हैं वो हिम्मत वाले लोग हैं। तो जब भी कोई कठिनाई होती है तो हम लोग हमेशा अपनी दृढ़ इच्छा रखते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं। तो मैं खुद अपना उदाहरण दूं कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे समस्याएं हुई, लेकिन फिर भी मैं तिब्बती की जो मूल भावना थी उसको मैंने रखा। तो इस भावना को हिंसा के माध्यम से नहीं, अहिंसा के रास्ते पर चल करके उस समस्या का हमने सामना किया। तो आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग तिब्बत की जो एक भावना है उसको लोग एक लोहा मानते हैं कि इनके जो एक विचार है वो दृढ़ है, एक प्रकार से मजबूत है। So when some situation, different people, different opinion, तो कभी कोई समस्या होती, जो समस्याएं हों, लोगों के अलग अलग विचार हों, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो आपकी जो प्रज्ञा है, जो आपकी बुद्धि है, उस पर आधारित रख कर के आप अपने करुणामयी चित्त को आप रखेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, इससे बहुत बड़ी बात फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे लोग एक मानना शुरू कर देंगे, लोग उस पर, लोग जो भले ही पहले आपकी बुराई या इत्यादि करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका वही प्रशंसा करने लगेंगे। तो शुरुआत में तिब्बत के साथ भी ऐसे ही, हम लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ कहानी है कि पहले तिब्बत के और चीन के लोग भी बहुत सारी एक समस्याएं करते थे, लेकिन आज वही लोग उसमें रुचि दिखा रहे हैं। बहुत लोग हम एक प्रकार से सहयोग भी कर रहे हैं। Spirit. Thank you, Your Holiness. So next question is coming from Kevin Llewellyn. She is 19 years old. अगला प्रश्न He is homeschooled Kevin and Llewellyn. currently on year 8. Yeah, so Kevin will ask his question in Tibetan. तो केविन अपना प्रश्न पूछेंगे। 결과 림포치 초라 다시 पूछेगा। 인도네시아 페파 델wengo तो मेरा प्रश्न है परम पावन जी कि तिब्बत और इंडोनेशिया के बीच का जो संबंध है वो कैसा है, इसके बारे में आप बताएं। तो पूर्व में एक आचार्य धर्म कीर्ति हुए थे, लामा सेलिंगबा जिनको बोलते हैं। Very close relation. That great Lama from Indonesia. तो वो इंडोनेशिया के एक बहुत बड़े गुरु थे। So because of that, some special connection. तो उनके वजह से इंडोनेशिया और तिब्बत का संबंध रहा है। So in the past, some special connection. Now, in future also. तो जो अतीत से ही हमारे साथ
इंडोनेशिया का संबंध रहा है और भविष्य में भी निश्चित रूप से यही संबंध रहेगा, जो कि अब सूचनाओं का अभाव नहीं है, अब सूचनाओं का माध्यम है। तो हम अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ रख सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। Okay. Okay, thank you. And the next question, I'm calling for Marvela. She is 17 years old from SMA Kristen 1, BPK Penabur, Jakarta. Good morning, Your तो Holiness. गुड मॉर्निंग होलिनेस, मेरा प्रश्न है कि How can I apply तो मैं compassion करुणा को taught by the जातक जो Jataka कहानियाँ tales हैं during the और pandemic उनके माध्यम से इस and महामारी के which दौरान tale कैसे would उपयोग His कर सकें? Holiness recommend तो कौन that सी could कहानी be को a source परम of पावन जी बताना motivation चाहेंगे, and inspiration जो कि for सभी all के of us? लिए Thank you, Your Holiness. एक मोटिवेशन और प्रेरणा का स्रोत हो? The Buddha story and the 34 chapters, तो which more relevant, I can't remember तो इसमें 34 अध्याय हैं, to read. तो कौन से लाभदायक हो सकती है? अभी मैं तुरंत तो बता पाने में समर्थ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना होगा। लेकिन मुख्य बात तो मैं आपको अगर कहना चाहूँ Sense of oneness, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं irrespective उनमें एकता के होना चाहिए। इसमें एक अंतर नहीं होना चाहिए कि उनका धर्म क्या है, उनका देश क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका संप्रदाय क्या है। ये सब इन सबसे परे कि हम सभी एक जैसे हैं, that basis हम सभी एक समान हैं। serving इस आधार पर हम लोग जितना हो सके लोगों की मदद करें। जो भी लोग हों, विश्व के जहाँ से भी कोई हो, उनकी हमें मदद करनी चाहिए, चाहे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कहीं से भी हो। हम इनमें कोई अंतर नहीं है। east depend west, तो अगर हम future of वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में देखें तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पर निर्भर है। सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। not like ancient time. तो आज के समय और प्राचीन समय में बहुत बड़ा अंतर। हम प्राचीन समय में जी रहे, ऐसी बात नहीं है। The dependency, तो प्राचीन समय में we really लोग अलग थलग हुआ करते थे, लेकिन आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे समय में हमें एकता so की जो भावना है, हम सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए। इस प्रकार का अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। Tibetan, उदाहरण के लिए कि मैं तिब्बती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भारत देश में रह रहा हूँ। consider every human being तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो हमारे सभी भाई बहन की तरह हैं। हमको साथ साथ रहना है। instead of jealousy or said तो जहाँ तक ईर्ष्या, झगड़ा, no इनका कोई उपयोग नहीं है। several centuries तो पिछले we human beings कई एक शतकों में हम लोग इस तरह से लड़ झगड़ कर रह चुके हैं। हम लोगों ने युद्ध का सामना किया, युद्ध किए। nuclear weapon इसके अलावा भी परमाणु हथियारों का भी उपयोग किया। mature लेकिन अब हम थोड़े से समझदार हो गए हैं। violence not the way तो हम जानते हैं कि जो हिंसा है वो उचित मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी together ये चीज़ें होती हैं। हमें इनके साथ भी जीना है। I think more principle of democracy तो अब जो हमारी विश्व में एक विचारधारा है, जो कि लोकतंत्र की विचारधारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। we should keep concept of oneness तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उनमें एकता की बात होना चाहिए। like हम सभी को साथ साथ रहने की आवश्यकता, साथ साथ रहें। okay Thank you, Your Holiness. Okay, so our next question is coming from Beltran Dario. He is 19 years old, a student from Catholic University. of कैथोलिक Paraguay. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनके तरफ से प्रश्न। I would like to ask you some तो questions. परमपा जी, आपसे मैं प्रश्न पूछना Currently चाहता in हूँ। Indonesia, there are many तो groups अभी of extreme इंडोनेशिया में बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोग जो चरमवादी हैं, जो दूसरों धर्मों को एक प्रकार से दमन करते हैं। तो जो लोग कमज़ोर लोग हैं, जो हम लोग बुद्धिस्ट लोग हैं,
वो लोग ऐसे इन समस्याओं का सामना we are a करते हैं, minority. तो ऐसे लोगों So, को हमें कैसे सामना could you करना give चाहिए? us some advice to us how to overcome these situations? Thank you. Right. Religious believer and some kind of thinking, one religion, one truth, तो एक धर्म in the और past एक सत्य, causing some problem. जो कि प्राचीन समय में ऐसी विचार था, There are so many different religious traditions. ये पुराने समय के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन आज के समय में देखें We have to live side अलग by बात side. है। हम लोग को चाहे पसंद करें या न करें, हमें साथ साथ रहना है, एक दूसरे के साथ जीना है। Now Indonesia, basically Muslim country, तो इंडोनेशिया जहाँ तक देखी जाए वो मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन फिर भी उसमें जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, interest, तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं Buddhism. जो कि बौद्ध धर्म के प्रति भी रुचि दिखाते हैं। Now, you see, besides just faith, श्रद्धा के अतिरिक्त जो हमारी मूल विचारधारा है, जो हमारा पूरा एक प्रकार से धर्म का सिस्टम जो होता then है, now today, जो धर्म की एक व्यवस्था जो होती है, Buddha Dharma, आज के समय में अगर आप देखें scientific, कि बौद्ध धर्म जो है एक वैज्ञानिक धर्म है, और ख़ास करके जो हमारी नालंदा की जो परंपरा है वो पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक परंपरा है। इसका संबंध इतिहास की दृष्टि पर देखा जाए तो बुद्ध के साथ भी संबंध रहा है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते, जैसे कि कुछ वैज्ञानिक लोग हैं जो कि किसी धर्म को भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो बौद्ध धर्म के जो विचारधारा है उसकी प्रशंसा करते हैं। और ख़ास करके जो हमारे जो भावनाएं हैं कि अपने मन की जो सुख हैं, क्रोध को कैसे कम कर, सुख को कैसे बढ़ाया जा सके, ईर्ष्या को कैसे कम कर सकें, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये कोई धर्म की मान्यता हो ऐसी बात नहीं, धर्म को आप माने तभी ऐसी बात करें ऐसी बात नहीं होती है। explanation about human emotion and how to control or how to reduce negative emotion, how to किस प्रकार से हम अपने जो नेगेटिव या नकारात्मक भावनाएं हैं उसको कैसे कम करें, सकारात्मक भावना को कैसे बढ़ाएं। some scientists not religious minded. तो हमारे कुछ मित्र हैं जो वैज्ञानिक मित्र हैं, वो भले ही धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है तो उसमें रुचि दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने मन में शांति ला सकते हैं। तो मैं अक्सर एक प्रकार स्वस्थ कर भावनाएं इनके बारे में मैं कहता हूँ। तो बौद्ध मनोविज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मन की शांति को स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So now any religious people remain isolate, then one truth, one religion. अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो उसके लिए एक धर्म एक सत्य तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ रहते हैं तो फिर लोगों के साथ में तो आपको अलग अलग चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। तो इंडोनेशिया की अगर बात करें, इंडोनेशिया के बौद्धों की अगर बात करें, तो आप लोग जो है जो वहाँ के मुस्लिम भाई बहन हैं उनके प्रति जो आपका ज्ञान है उनको साथ रखना चाहिए। तो हमारे जो जैसे कि हम लोग तिब्बती लोग इस भारत देश में एक शरणार्थी के रूप में रहते हैं और धार्मिक सद्भावना को बनाने के लिए ही हम यहाँ रह रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी तो जो आपके जो संकुचित विचारधारा वाले मुस्लिम भाई बहन हैं उनको आप उनके साथ अपने जो अच्छी विचारधारा उनको आप बांट सकते हैं। The next question is Gracia Natania. ग्रासिया नातानिया 14 वर्ष की छात्रा हैं। Hello, His Holiness. My question is, परम पावन जी, मेरा प्रश्न है जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है,
तो छोटे बच्चे और लोग जो हैं वो जो किताबें पढ़ने के प्रति कम रुचि दिखा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताबें कैसे पढ़ें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जातक कथाओं को कैसे सुने, कैसे उनके वैल्यू को समझें, उनके मूल्यों को समझें। पर्सनल टेलीफोन, तो आजकल आप देखें कि लोगों के पास मोबाइल होते हैं, वी कैन इजीली तो मोबाइल के माध्यम से हम एक दूसरे से आसानी से संबंध स्थापित कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और लोगों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू रीड बुक्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको किताबें ही पढ़ना हो, तो मोबाइल के माध्यम से एक किताबों को पढ़ सकते हैं, सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कोई बुराई नहीं है। पर्सन आई साइट नॉट वेरी गुड, तो किसी व्यक्ति की मान लीजिए आँख अच्छी नहीं होती है, तो उस समय आपको किताबों को पढ़ने की ज़रूरी नहीं है कि आप किताबें ही पढ़ें, तो मोबाइल के माध्यम से आप सुन सकते हैं, आप वार्ता कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। अब जिसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो जरूरी नहीं कि किताब ही पढ़े। Okay, thank you so much. So the next question, I'd like to call Rehans Lutfi Hudoyo, 19 years old from STABN Sri रेहान College of की तरफ Buddhist से Studies. प्रश्न है, कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी के छात्र हैं। Thank you, Your Holiness. My question is, why is it तो so मेरा hard प्रश्न है, to reach jhana or the state of awakening? तो बुद्ध जो ज्ञान को प्राप्त करना आजकल कठिन क्यों है, और जो अतीत काल में लोग जो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते थे, बुद्ध की शिक्षाओं को आसानी से समझ सकते थे, तो आज के समय में हम क्या करें जिससे कि हमारे जो मानसिक स्थिति वो बढ़ सके। जस्ट heard Buddha's teaching. तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि बुद्ध की शिक्षाओं को आप सुन लो और सुनने के तुरंत आप ज्ञान प्राप्त हो जाएं, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने खुद, देखो आप उनके जीवन को देखें कि 6 वर्षों तक ध्यान किया, बहुत कठिन कार्य किया, तप किया, ध्यान साधना का अभ्यास किया। तो फिर उन्होंने इसके बाद उन्होंने खुद कहा है कि पहले आपको अच्छी तरह से सुनना चाहिए और केवल आप सुनते रहें, तो सुनने मात्र से आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आपको चिंतन करना चाहिए। तो केवल चिंतन केवल चिंतन करते रहें उतना भी उचित नहीं हो सकता है। चिंतन करने से ज्ञान तो बढ़ता है, तो लेकिन केवल चिंतन करते रहें उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो इसके बाद आपको एक प्रकार श्रवण फिर चिंतन भी करना चाहिए। You see, your mind, you see, actually, you see, the deeper level change. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके you see, firstly, your sort of inner ability to see something. और जैसे जैसे आप चिंतन करते जाएंगे तो वैसे ही आपका जो ज्ञान है वो और ज़्यादा एक प्रकार से प्रखर हो जाता है। भले ही आप इन अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से न देख सकें, लेकिन आंतरिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ता चला जाता है, जिससे कि जो मानसिक जो विशेषताएं हैं वो ध्यान के माध्यम से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनको आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। Then with that, then use, you see, what is the ultimate source of problem, suffering. तो जो हमारे समस्याओं का वजह क्या है, समस्याएं क्यों आती हैं, इनको हमें समझना चाहिए। Something absolute. तो हमें अक्सर कोई चीज़ तो दिखाई देती है कि वो स्वतंत्र रूप से सत्ता में होती है, अपने आप में उसकी सत्ता होती है, लेकिन जब उसको परीक्षण करेंगे, क्वांटम फिजिक्स के आधार पर अगर परीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो वैसे स्वतंत्र सत्ता में नहीं होती हैं। तो जब हम इनका परीक्षण करें
तो फिर पाएंगे कि कोई भी अपने विषय के आधार पर अस्तित्व में नहीं होते हैं। सारी की सारी चीज़ें हमारे मन के द्वारा आरोपित होती हैं। ऐसा बौद्ध धर्म में एक व्यवस्था के अनुसार कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में अगर आप देखें, नालंदा परंपरा के आधार पर अगर आप देखें, तो जिसमें व्यवहारिक, स्वतांत्रिक, माध्यमिक और चित्रमात्र, तो ये 4 बौद्ध दर्शन हैं। बौद्ध दर्शन के एक विभेद हैं। तो जैसे कि नागार्जुन को आप देखें, बुद्धपालित को देखें, चंद्रकीर्ति, फिर शांतिदेव, और ये जो लोग थे, ये जो विद्वान थे, तो इनका जो माध्यमिक दर्शन को मानने वाले जो विद्वान थे, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इनसे जो हमारे अंदर जो मिथ्या विकल्प, मिथ्या विचार बने हुए हैं, उसको कम करने के लिए लाभ होता है। और ये लाभ होता है कि हम जिन चीज़ों को स्वतंत्र मान करके बैठे हुए हैं, तो कोई भी चीज़ स्वतंत्र सत्ता में नहीं होती है, केवल नाम मात्र से आरोपित होते हैं। So that thinking very much sort of against or very much forceful to reduce thinking things absolute, and then oneself, you see, I actually now माध्यमिक philosophy, तो माध्यमिक दर्शन में clearly mentioned और इसमें I, स्पष्ट कहा जाता है कि जो मैं है और आई है वो कहाँ है। हमारे शरीर, काय, मन, इससे हटकर के मैं कहाँ है। तो अक्सर हम यही कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा चित्त, मेरे शब्द, मेरा वचन, तो आखिर मैं कहाँ है। So when negative emotion comes, there is something. तो जब कोई नकारात्मक भावना आती है, उस समय लगता है कि कोई मैं या फिर आत्मा स्वतंत्र रूप से सिद्ध है, ऐसा आभास होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो नागार्जुन के जो लोग थे, उनको मानने वाले लोग थे, उन्होंने इसमें परीक्षण किया। Nothing. So those negative तो emotions, इसलिए आप खुद परीक्षण करेंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। I, something independent. तो फिर यही मान करके, लेकिन जब हमें क्रोध इत्यादि आता है तो लगता है कि मैं एक प्रकार से कोई स्वतंत्र है। तो जब क्रोध हो, उस समय भी आप देखें कि कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। फिर क्रोध उत्पन्न होता है, भय पैदा होता है, संदेह पैदा होता रहता है। लेकिन इसी प्रकार से हम एक प्रकार से मिथ्या विकल्प की वजह से, मिथ्या विचार की वजह से ये भावनाएं पैदा होती हैं। Very difficult to salvation. You have to study. तो केवल बुद्ध वचनों को सुनने से आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, उतने मात्र से संभव नहीं हो सकता है। आपको और ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। मैं 80 वर्ष से ज़्यादा का व्यक्ति हो चुका हूँ। Sort of study for final examination. तो मैं भी जब तिब्बत में था, तो वहाँ तक मैंने पढ़ाई की। And then daily I'm thinking. So really. और उसके बाद भी आज भी मैं रोज अध्ययन करता हूँ। And feeling. Nowadays, you see, now the Chandrakirti's, you see, few verses, I always remember that, and thinking something independent self, almost zero. तो जो स्वतंत्र सत्ता की अगर आप बात करें, तो वो कोई स्वतंत्र नहीं होती है, इसकी कोई सत्ता नहीं रहती है। Translator, then 개들랑 생이 된 요는 텔레그룹에 ngobu직비시 동니 ngobu직비 교교는 된지직비 되신 거예요. 같이 ngo부지다 남자는 등이 다진 걸 추르도 내님만이 뒤지지는 타냐잖아 나버리면서 등이 그서고 건식이 다다전에 깨워지면 실제 타냐 되냐 좀 겨여한 거 이거 ngo부도 무슨이야 나서 서로 더 맞아봐야
지다든지 소녀 소동을 시바대 나버지요 지신고부터 저 떠나요 तो यहाँ पर 4 प्रसंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 4 प्रकार के जो प्रसंग हैं, वासुदेव तो आर्य के समाहित अवस्था के विनाश के कारण बन जाने का प्रश्न, यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अपवाद से भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु जो है तब तक वह युग संगत नहीं है, अतः भाव स्व नहीं है। फिर दूसरा, व्यवहार सत्य युक्त द्वारा परीक्षा न करवाने का प्रसंग, क्योंकि इन भावों की परीक्षा के जाने पर परमार्थ भावों से अतिरिक्त व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होता है। लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जाती है। I always recite, you see, these words and thinking. तो मैं इन बातों को हमेशा याद करता हूँ, हमेशा ध्यान देता हूँ। The ultimate reality and the relative reality, the essence of relative reality is altruism. The reality of absolute is emptiness, shunyata. तो जो वास्तविक जो सत्य है वो हमारी शून्यता है। तो शून्यता और प्रज्ञा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर दोनों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो आप बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहें तो वो संभव नहीं हो सकता है। कि सदैव निरोध समाहित आशय से युक्त तथा नाथ सत्यों के करुणा के भी उत्पाद करता है इत्यादि। तो मैं भी एक प्रकार से अपने आप को मानता हूँ कि कुछ अभ्यास करके मैं कुछ भूमि के जो स्तर है वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो समृत और परमात्म रूपी विशाल विकसित शुभ्र पंखों वाला जन रूपी हंसों द्वारा सामना किया गया वह हंसराज छठी भूमिका बोध से शुभ पवन वेग के बल से जिन बुद्ध के गुणों वाले समुद्र पार कर सी गमन करता है। तो परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, तो आज का हमारा प्रश्न अंतिम प्रश्न है। Tashi Delek, Your Holiness, it is a happiness to see you. परम पावन जी, आपको देख करके बहुत ही प्रशंसा। और मेरा प्रश्न है, जो ऐसे लोग जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं उनका हम कैसे सामना कर सकें। तो भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उसमें कहा जाता है कि हमारे अंदर तथागत गर्भ है। तो हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा जो चित्त है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चित्त की भी अलग अलग स्थिति होती है। जो सूक्ष्म चित्त होता है वही एक प्रकार से तथागत गर्भ है। तो क्या समस्या आपके सामने आ रही है, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कि कैसे हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा आप अध्ययन और चिंतन करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको एक प्रकार से आत्मबल, आत्मविश्वास पैदा होगा। Buddha nature is a foundation. तो जो तथागत गर्भ की बात अगर करें तो तथागत गर्भ ही बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए एक आधार है। इसी के माध्यम से हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब अंतिम प्रश्न में पूछना चाहूँगे। तो हम लोग आज एक जो बहुत सारी सूचनाएं हैं, डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे युग में हम लोग रहते हैं। तो मैं आपको देखती हूँ कि आप जो कि 80 वर्ष से अधिक के भी हो गए हैं, फिर भी आप एक प्रकार से फ्रेश ऐसे दिखाई देते हैं। तो आप हमें कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि हम भी आपकी तरह किस प्रकार से हो सकें, किस तरह से रह सकें। Usually we mainly as eye consciousness, ear consciousness, these। तो हमारे जो इंद्रियां जो हैं, जो 5 इंद्रिय हैं, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इत्यादि, ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सक्रिय होते हैं।
तो ये डोमिनेंट रहती है। तो हमें इन इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए, इनके गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो हमें अपने जो हमारा जो छठा मन है उसके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। तो चाहे आप आँख को बंद करके रखें या न रखें, तो उस समय ध्यान दें कि हमारे जो मन न भटक पाए, जो हमारे चित्त, जो हमारे चक्षु इंद्रिय है, हमारी स्रोत इंद्रिय है, तो ये भटकने ना पाए, इनके द्वारा हमारा मन न भटके। The senses of organs, the main mind, and there are all senses of organs close. और फिर आप जब आँखों को या फिर या अन्य जो हमारे इंद्रिय हैं जब बंद हो जाते हैं अथवा जब नहीं करते हैं, तो हमारी जितनी भी गतिविधि है उस समय हमारा जो चित्त है उस पर रह जाती है, हमारे मन पर आधारित हो जाती है। तो जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव को प्राप्त करते हैं और या फिर आप गहरे ध्यान की अवस्था में रहते हैं, जब गहरे ध्यान की अवस्था में रहते हैं तो ये जो हमारे मन के आधार पर होते हैं, almost complete neutralize the sixth mind. Then from there, firstly, shamatha. फिर इस आधार पर पहले आप समत का अभ्यास करें, stable sixth mind. और फिर आप अपने मन को स्थिर करने में सक्षम हो जाएं। Intellectual. फिर अपने चित्त के माध्यम से आप परीक्षण करें, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं कहाँ है। इस प्रकार की जो हमारी नकारात्मक भावनाएं आती हैं वो कैसे हैं, इनको अगर आप जानेंगे तो अच्छा रहेगा। Inner peace, and then the daytime thinking these lines. अगर आप दिन में इनके बारे में अगर आप सोचते रहते हैं, during sleep, फिर आप जब आप सोते हैं, जब आप शाम को सोते हैं तो उस समय आपके स्वप्न में वही बातें आ जाती हैं, आप कुछ अनुभव को प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ें आपको एहसास होने लगती हैं। You always utilize your sixth mind. तो इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर तो आप अपने मन का उपयोग करते हैं, छठा मन का उपयोग करते हैं। And remain there more time, the sixth mind itself, then more subtler. तो फिर जैसे जैसे ये अगर आप मन पर या ध्यान करते जाएंगे वैसे वैसे ये चित्त सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाता है। Teaching books. तो कुछ किताबों में कहा गया है, कुछ दर्शनों में या फिर कुछ different also the minor mind. तो जो व्याख्या की जाती है कि हमारे जो चित्त हैं या चैतसिक हैं 80 अलग अलग जो 80 प्रकार के होते हैं, जो 37 के फिर 40 फिर 7 तो एक प्रकार से जो कैटेगरी कह सकते हैं, जो हमारी जो विचारधारा है वो एक प्रकार 40 ग्रुप, 40 चित्त एक साथ, फिर 37 प्रकार के, फिर 7 और 33 जो हमारे जो अटैचमेंट और 40 क्रोध के साथ जुड़े होते हैं और 3 हैं जो अज्ञानता के साथ जुड़े होते हैं। Eventually, you gain some experience. और फिर जैसे जैसे आपको अनुभव की प्राप्ति हो जाती है, आपका जो सूक्ष्म चित्त है वो धीरे धीरे और ज़्यादा सूक्ष्म होता चला जाता है, अंत में जाकर के स्पष्ट हो जाता है। तो इसी को हम बुद्ध प्रकृति, बुद्ध प्रकृति भी कहते हैं। ये जो चित्त की सबसे सूक्ष्म अवस्था होती है और फिर और ज़्यादा जैसे आप चित्त को सूक्ष्म करेंगे तो वही बुद्ध का चित्त कहलाता है, वही बुद्धत्व कहलाता है। तो हम लोगों को बार बार इस पर चिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। Thank you so much, Your Holiness. तो परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Any final message for our Indonesian youth
क्या आप कोई इंडोनेशियन लोगों के लिए कोई आप सलाह देना चाहेंगे? इस kalau jugdi kalau misalnya ya nas Frans tapi mi ya वो यहाँ है चीज़. Now, Indonesian Buddhist, I think you have some special opportunity. तो आप जो इंडोनेशिया के बुद्धिस्ट हैं, आप लोगों के पास एक विशेष अवसर है. आपका ये एक बड़ा इंडोनेशिया एक बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है. About wholeheartedness. तो आप लोग उनको जो हमारे करुणा मैत्री युक्त जो मन है, चित्त है, वो भी आप उन लोगों को साथ में बांटें, क्योंकि मुस्लिम जो भाई बहन हैं उनको भी प्रेम करुणा की आवश्यकता है. So, sharing these sort of deeper knowledge. तो इस प्रकार के जो गंभीर विषय हैं, सामान्य विषय हैं, उनके साथ अगर बांटें, करुणा मैत्री का संदेश उनके साथ अगर आप बांटते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके प्रति उनके साथ और ज़्यादा अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता हो सकता है. उनसे और ज़्यादा अच्छे एक विचार कि किस प्रकार से हम सद्भावना में कैसे रह सकते हैं, किस प्रकार से हम जो सुखद करुणामय समाज का हम निर्माण कर सकते हैं, एक दूसरे को साथ में ये बातें बांट सकते हैं. Essentially, as I mentioned earlier, all carry. तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि सभी धर्म लगभग एक जैसे संदेश लेकर के चलते हैं. करुणा और मैत्री, इन सभी के सभी धर्मों में ये व्यवस्था होती है. You yourself thinking more. तो इसलिए सबसे पहले आप अपने और ज़्यादा सोचें और फिर दूसरे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके साथ सोचें. इसके माध्यम से आप जो धार्मिक जो सद्भावना है उसमें बढ़ाएं, आपस में समझ बढ़ाएं. तो निश्चित रूप से आप एक सहयोग कर सकते हैं. जो धार्मिक सद्भावना के लिए आप अपना सहयोग कर सकते हैं. तो आपका धन्यवाद. So with that last message, we are coming to the end of our talk. So let me wrap up this wonderful session with a quote from His Holiness. There are only 2 days in the year that nothing can be done. तो परम पावन जी, One is called yesterday and the other is called tomorrow. जो बीता हुआ कल और आने वाले कल, इससे आप कुछ नहीं कह सकते हैं. ये परम पावन जी खुद कहते हैं. तो अभी का जो क्षण है, आज है, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो इसलिए हम लोगों को प्रेम, करुणा, मैत्री इसके साथ जीने की आवश्यकता है. तो सबसे महत्वपूर्ण कि आप खुद भी करुणामयी बने, दूसरों को भी बनाएं. तो परम पावन जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें अवसर दिया. तो उससे भविष्य में भारत में या इंडोनेशिया में मुलाकात होगी. मैं आपके दीर्घ आयु के लिए कामना करते हूँ. तो आपके प्रवचन से सभी लोगों का हित हो सके. Let us meditate on karuna. तो अंत में करुणा पर हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे. Just 1 minute. 1 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे. Like that. Okay. Thank you. Thank you. Wow, this is धन्यवाद. very special. Thank you so much, Your Holiness. And to express our gratitude and to close this event in an auspicious note, the student representatives, the chanting आज master, myself and my family, this मैं is एक my husband chanting Reza and this is my daughter Atisha. We would all like to offer a katak to His तो Holiness. आपको अपने परिवार की तरफ से खातक में भेंट कर रही हूँ. Thank you. 청주 선생님이 시우지 다성부르샤. 장신된 저루치 청주 선생님이 तो बोध चित्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. पर और हित, तो अगर स्वयं का हित चाहते हैं तो बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए. दूसरों का हित करना चाहते हैं तब भी बोध चित्त का अभ्यास, जो पुण्य का संग्रह करना चाहते हैं उसके लिए भी बोध चित्त करना चाहिए. तो ये बोध चित्त का जो अभ्यास
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप बौद्ध हैं कि नहीं, धार्मिक हैं कि नहीं, इसका कोई जरूरी नहीं है, बोधचित्त महत्वपूर्ण है। So His Holiness is making a comment about bodhicitta, this altruistic intention for the benefit of others, which is incredibly beneficial. And in terms of even if you want to be happy yourself, you need to have it. And if you want to help others, you need to have this compassion. And in order to purify your negativities, and also to accumulate or accrue positive energies for the sake of yourself and others, you need this. So this altruistic intention to benefit others is incredible for our own and others' sake. 산지 좀 된데 기름 별로 다양 초주 나셔도 돼. 영야가 싸워로디 좀 된데 코랑 당부 전주서도 투기 되네 투기버디 तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने जो जातकों की अगर देखें तो उन्होंने भी निरंतर एक बोधचित्त उत्पाद किया, पुण्यों का संग्रह किया, और फिर धीरे धीरे जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति की। So in the Jataka tales, you read about the incredible acts and deeds that the Buddha, when he was a bodhisattva, actually engaged in. All these the altruistic deeds that the Buddha performed when he was a bodhisattva came from this intention to benefit all other sentient beings, which is called bodhicitta. And so with that intention, with that aspiration to reach Buddhahood, he actually generated and cultivated bodhicitta, and then accordingly he engaged in the different actions or practices that could lead one to that final goal of Buddhahood. And so in this way the Buddha went through the different stages of spiritual development and finally became enlightened based on this altruism. 안데 준주 나리야 닥대 생기 동에다 양다저 맞잖아 상계 이도 민주주 코나야 대화 메스도 와 랑진진 짱짱 삼다 현진 삼으면은 상계 고토다 파샤네 스고 코를 내버리네 동에마도 대화 면도고 닥대 생기 동에다 양다저 맞잖아 상계 이도 민주주 코나야 대화 메 대외 경에 근세 전주심께 따셔네 대내 대화를 들어가서 섬시 수식 And then Master Shantideva in his Bodhisattvacharya Avatara says, unless you're able to switch your own joy and happiness with the suffering of others, तो बोधचर्या अवतार में भी कहते हैं कि अगर दूसरों की जो दुख हैं उनको अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप जितना ज़्यादा इसमें रह करके जितना ज़्यादा आप स्वार्थी रहेंगे तो फिर कभी भी अपना और दूसरों का भी हित नहीं कर सकते हैं। altruism or bodhicitta is that root which brings happiness for yourself. तो इसलिए बोधचित्त है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। That thus which intelligent or sensible person would not wish to ride the horse of bodhicitta, which leads one from a blissful state to blissful state. Yeah. तो फिर इसके आधार पर कहा जाता है कि जब तक आकाश की स्थिति है तब तक प्राणियों की स्थिति रहे, तब तक प्राणियों का दुख नाश करते हुए मेरी स्थिति रहे। इससे पूर्व में कहा गया था कि दूसरों के दुख से अपने को सुख को बिना बदले बुद्धत्व की सिद्ध नहीं हो सकती, फिर संसार में सुख ही कहाँ। As long as space remains, as long as sentient beings remain, may I too remain to dispel the miseries of the world. Okay. this 망아리 배지 라마 슬링번의 배지 기울다. तो ये जो संदेश हैं जो अब मैं कह रहा हूँ वो निश्चित रूप से जो आचार्य
श्रीलंका तब से रहे होंगे या धर्म कीर्ति से रहे हों, जो कि इंडोनेशिया के मास्टर हैं, तब से ये परंपरा चली आ रही है। 조지 실링의 장합회네. So तो जो आतिश दीपांकर श्री ज्ञान, तो वो हाँ भारत से इंडोनेशिया गए और आचार्य धर्म कीर्ति से और शिक्षाओं को प्राप्त किया, तो तिब्बती लोग श्रीलंका कहते हैं। तो जो स्वर्ण द्वीप के आचार्य थे, उनसे प्रवचन या शिक्षा प्राप्त की। आपका धन्यवाद। बाय बाय। We're very, very honored to have this wonderful message and the short meditation that we have shared. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.